کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعذ باللہ. حدیث میں آیا ہے, حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول, اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ. ہیلو دوستو, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہی ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. دوستو, آج کی ویڈیو میں ہم ایک مفتی سعید صاحب کو سنیں گے جو کہتے ہیں کہ حدیث کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے, حدیث کی باتیں ماننے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. حدیث کی باتیں ماننا اس طریقے سے ہے جس طریقے سے قرآن شریف کی باتوں کو مانا جاتا ہے. تو اس بارے میں ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جواب سنیں گے کیونکہ وہ حدیث کے حوالے سے اور قرآن مجید کے حوالے سے ہی جواب دیتے ہیں. تو آپ بھی اس ویڈیو کو پوری دیکھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ بھی صحیح باتوں کو جان سکیں. مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں, یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کریں, ٹھیک ہے نا. اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ لکھیں. یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں, پڑھائی بھی. ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے. پکے ٹھیٹ حنفی, پکے ٹھیٹ حنفی, پکے ٹھیٹ حنفی. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے, آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا. حدیث میں آیا ہے, حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعذ باللہ. حدیث میں آیا ہے, حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعذ باللہ. حدیث میں آیا ہے, حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعذ باللہ. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے, اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث مطلب کیا. اچھا, یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو, میں بہشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں, میں فتاوی عالمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی, رد المختار, در مختار لگائی ہوتی ہے, یہ مجھے نہ بھیجا کرو؟ کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں. آپ کو تو سناتے ہیں نا آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اس سے آپ کو عصمت مصطفیٰ تو بتاتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول, اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ. اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی. تسی لوگ ہو حدیث حدیث, تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں. تم لوگ ہو گستاخ رسول, حدیثوں کا مذاق اڑانے والے. یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے, اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے. بالکل, وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا, حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا. اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو نبی علیہ السلام کے فرامین کا یوں مذاق اڑاتے ہیں, حدیث 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 پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. اوے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے اکٹھے کیے ہیں, جائیدادیں بنائی ہیں, کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے, اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو, اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے. عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں. غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم, پکے غدار ہو. اسی لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے, ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں. حدیثیں نہ سناؤ میں, تنو سی فتاوی شامی سنائیے, در مختار کے حاشیہ رد المختار, جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی, بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے. کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے, 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی. کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے. یہ ان کو لکھ کے بھیجے نا, ہاں اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. حدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ حدیث ان کے خلاف, قرآن کے خلاف, کیونکہ یہ تو ہوئے کٹر ٹھیٹ حنفی. عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور توہین انہی کی کر رہے ہیں. تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نما چہرے ہیں نا, عجیب و غریب قسم کی گونے پہن کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں, گرم تولیے ان کے منہ کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے. ظاہر ہے وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں, اور کیڑا 1500 سال تو تھوڑے بزرگوں کا دین ہے, نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت, نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت. کیڑا 1500 سال, 1100 سال کیا کرو, اور نال حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. اور تسی بعد والے ہو جی پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے, پرانوں کے تو آپ منکر ہو, تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو.
पुराने वैसे थे जैसा कि हम हैं। कौन से अकीदे तुम्हारे कुरान और सुन्नत से साबित है? मैं कट्टर ठेठ हनफी, केड़ा हनफी? कट्टर हनफी देवबंदी। 1866 में देवबंद मदरसा बना है। 1500 साल नहीं सरकार, 150 साल पहले तुसी आए हो दुनिया च। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को देवबंदी नहीं कहता था। और 1904 के अंदर आला हजरत ने बनाया मंजिल इस्लाम बरेली का मदरसा। इससे पहले दुनिया का कोई मुसलमान अपने आप को बरेली नहीं कहता था। कहानी करानी बंद करो। और फिर आप है कट्टर ठेठ हनफी। केड़े हनफी हो? अल मोहम्मद आले या उसामुल अरमैन आले? आना दाड़ थले हुण तू। ये दोनों हनफी हैं जी। ये हुण दसना है कि विच अलाली हनफी केड़ा है। अलाली यानी वो मैं रूहानी तौर पर ही बात कर रहा हूं, वो दूसरा आउट ऑफ वेडलॉक की तरफ ना चले जाइएगा, ठीक है? और कोई फुरोई इख्तिलाफ नहीं, सरकार जमीन आसमान का फर्क है, एक दूसरे की तकफीर है। तो कौन सा कट्टर ठेठ हनफी है कि जो करोड़ों बरेलवियों को काफिर और मुशरिक समझते हैं? या तू वो कट्टर ठेठ हनफी है जो करोड़ों देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल समझते हैं, यानी काफिर ही हो गए ना। तो ये जनाब अपने बुजुर्गों के बारे में कभी ये जुमले नहीं बोलेंगे कि हमें हदीसें ना बताएं। अल्लाह के नबी इस्लाम यार तुम्हारे बाबे तो नहीं छोड़ के गए। हाँ, बुखारी मुस्लिम दोनों में है। नबी इस्लाम हर खुतबे से पहले कहते थे अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। कुछ अल्फाज तिरमिज़ी के और नसाई के भी हैं। आगाह हो जाओ, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है और सबसे हदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बदतरीन काम वो है जो दीन में नए जारी किए जाए और वो काम बिदतें हैं। तमाम बिदतें गुमराहियां हैं और तमाम गुमराहियां जहन्नम में ले जाने वाली हैं। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और ये कह रहे हैं कि जी हदीसें पढ़ के गुमराह होंगे। नबी इस्लाम तो हमें यही कह के गए। सही मुस्लिम में हज्जतुल वदा का खुतबा निकाल के देखें, नबी इस्लाम ने फरमाया मैं अपने बातों में वो चीज छोड़कर जा रहा हूँ जिससे मजबूती से पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, वो अल्लाह की किताब है। मुस्लिम शरीफ में सिर्फ किताबुल्लाह का जिक्र है। सुन्नत को मानना किताबुल्लाह ही को मानना है। मैं युतीर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। अलबत्ता एक हसन दर्जे की रिवायत अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है, वहां पे किताब और सुन्नत दोनों का जिक्र है। एक अपना ही दीन बना के रखते इन दोनों को मजबूती से पकड़ लेना। कोई बाबा पकड़ने के लिए नबी इस्लाम ने नहीं फरमाया। हालांकि नबी इस्लाम के पास तो वो बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे। कौन? सहाबा इकराम, अहले बैत, खुलफाए राशिदीन। लेकिन नबी इस्लाम को पता था कि कुछ अरसे बाद इन्होंने भी तो फौत हो जाना है। आज की डेट में जो रसूलुल्लाह का स्टेटस है वही अहले बैत का और सहाबा इकराम का स्टेटस है। सब दुनिया से चले गए। अलबत्ता कुरान दुनिया में मौजूद, सुन्नत का रिटन रिकॉर्ड मौजूद, इसलिए हुजूर ने वो बात की जो आखिरी इंसान तक के लिए बचनी थी। और फिर इसको सुपरसीड करने वाला खुतबा, गदीर खुम का खुतबा सही मुस्लिम के अंदर, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बातों में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है। इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि रसूलुल्लाह फिर हमें बार बार कहते रहे अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं, मैं अपने अहलुल बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। और ये जुमला आपने 3 दफा रिपीट किया, लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली। ना कुरान को पकड़ा, ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट चली। तो नबी इस्लाम तो बात ही कुरान सुन्नत अहलुल बैत की कर रहे हैं, ये अपने बुजुर्गों को लेके चल रहे हैं। इन लोगों का क्या लेना देना मेरे भाई? ना इन्होंने कुरान पढ़ा सही तरीके से, ना अगर पढ़ा तो फिर उसके साथ ये गद्दारी की है कि कह रहे डायरेक्ट पढ़ो। यार ये गद्दारी तो कोई फिजिक्स का प्रोफेसर अपनी किताब के साथ नहीं करता। आज तक किसी फिजिक्स के प्रोफेसर को सुना है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, या कोई इंग्लिश का प्रोफेसर कहे कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे? इससे बढ़कर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। जब कभी भी बड़े मजमे में मैंने अपनी क्लास के अंदर टीचर की गलती निकाली ना किताब से, तो उसने हमेशा कहा थैंक यू। मौलवी की आप गलती निकालोगे ना, थैंक यू। यानी एक दुनियावी टीचर जिसे ये समझते हैं, हम तो उस तालीम को भी दीन का हिस्सा समझते हैं, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर की तालीम है, साइंस की। वो अपनी किताबों के गद्दार नहीं है, ये लोग अपनी किताबों के गद्दार हैं और इससे बढ़कर इन किताबों से खा रहे हैं। इन्हीं नामों के ऊपर इन्होंने इज्जतें मेल की हैं। इतनी बेईमानी इस तरह कौन करता है? ये लोग करते हैं। मैं कट्टर ठेठ हनफी, बोल फिर कि मैं वो कट्टर ठेठ हनफी कि जिसके बाबे ने अल इमदाद रिसाले में ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स किया हुआ है। आया ना दाढ़ तले। हाँ, मैं वो कट्टर ठेठ हनफी। कभी इस पर भी पर्ची पढ़ना कि अशरफ थानवी साहब को अकल के नाखून ले कि आप ये क्या बात कर रहे हैं कि इसमें बड़ी तसल्ली है कि तेरा पीर मुत्तबे सुन्नत है। क्या खुलफाए राशिदीन इस तरीके से करते थे? और फिर अल मोहम्मद के जो अकीदे हैं वो तो मैं पूरी दुनिया के देवबंदियों को कह रहा हूं कि सिर्फ 3 अकीदे सरकार, वैसे तो उसके अंदर बहुत कुछ है, 3 अकीदे बताए हुए। इसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आके जस्टिफाई करें। मैं कट्टर ठेठ हनफी साहब, आप आ जाए मैदान में। पहला अकीदा लिखा हुआ है कि हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से
फैज लेने के कायल हैं, निचोड़ने के, टीका लगा के नहीं। वो ने कहा नहीं, उस तरीके पर जो खवास को मालूम है ना, कि उस तरीके पे जो अवाम में राय जाए। और फिर मैंने बताया इनके खवास क्या कुछ करते रहे कब्रों से। अरवाए सलासा में अशरी थानवी साहब ने लिखा है, कासिम नौतवी मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकलकर, ख्वाब में नहीं बेदारी में, दो बन के 2 मौलवियों की सुलह करवा के वापस चला गया कब्र के अंदर। ये खवास का तरीका है। आम बंदे तो क्या गुजरा। और बड़े इनके इस तरह के कब्र परस्ती के वाकयात हैं, वो मैंने पूरा रिसर्च पेपर नंबर 6 लिखा है, कब्रों से फैज के अकीदे का तहकीकी जायजा। फिर दूसरा उन्होंने लिखा है कि हम रसूलुल्लाह की कब्र को अल्लाह के अर्श, कुर्सी और काबा शरीफ से अफजल मानते हैं। एक केड़ी आयत है, केड़ी हदीस है। और फिर तीसरा अकीदा बताया था कि हम रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में जो हयात है उसे दुनिया की सी मानते हैं। दुनिया की सी मतलब हयात मुबारक तो हम भी मानते हैं, आला तरीन बरज़खी हयात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, जिसमें मुबारक भी सलामत है, इसमें तो मेरी कई एक वीडियोस रिकॉर्डेड है। ये दुनिया की सी क्या है। और फिर वो कहते हैं जनाब कि वो जी ये तो स्यूती ने लिखा है। ओ भाई सानू की दी तो हौसला दो। हम जब कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से इख्तिलाफ रख सकते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ मानते शायद कोई नहीं। स्यूती ने लिखा है। स्यूती कौन सा पुराना है यार, 500 साल पहले हुआ, 500 साल बाद मैं भी स्यूती बना होगा, मैं तो हुणी बन गया थे। हाँ स्यूती ने इतना मजमा वेख्या होना है, छड़ दो इंज कोई पढ़ता है, कोई इल्मी गल करो। सही ते बात कट्टर ठेठ अनफी साहब, मेरे ख्याल है इतनी खुराक काफी है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। वैसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। बिल्कुल। हाँ मैं तो कोई मौका नहीं जानने दूंगा कि मैं ड्रिल करूंगा इनकी पब्लिक के दिमाग में कि सोचो कि ये तुम लोग किन लोगों के पीछे लगे हुए हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने इज्जतें अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अवेल की हैं और कुरान और सुन्नत के नाम से चिढ़ते हैं। कहते हैं हमें ना लिख के भेजा करो, हम तो ये पढ़ के रिमूव कर देते हैं। हम 1500 साल बाद अब तुम लोग बताओगे हमें, हम अपने बुजुर्गों का दीन छोड़ दें। अच्छा इन्होंने पता है कि कुरान दी जेड़ा पढ़दा ना, इन्होंने बाबे दोबारा हो जाता क्यों। हाँ इन्होंने पता है। जिसकी सब तो बड़ी मिसाल मैं वहां 2002 में उम्रे पे गया, गिलाफे काबा पकड़ के दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे बरेलवी मारना, शुक्र है कबूल नहीं हुई। मनु कहना चाहिए अल्लाह मनु मुसलमान मारी। और ये मैं आपको वसूख से कहता हूं, अगर आप मुखलिस है ना सरकार, आप हदायत के मुखालिफ रास्ते पे भी चल पड़े ना इखलास के साथ, अल्लाह ताला कान से पकड़ के आपको सीधे रास्ते पे चला देगा। और अगर आप बेईमानी पे उतरे हुए हैं सरकार, तो आप रसूलुल्लाह के चचा भी हो ना, अबू लहब हाशमी भी हो, तो मर जाएंगे आराम मौत। और कुरान में क़यामत तक बददुआएं पड़ी जाएंगी उन पर, तब्बत यदा अबी लहब व तब। और इनके साथ यही ये बात है। निस्बत भी उसी वक्त काम आती है जब आप नबियों की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते। इतनी बड़ी बात मुफ्ती साहब कैसे बोल गए हदीस के बारे में। सोचिए जो इंसान पहले से ही गुमराह हो तो उसे हदीस क्या गुमराह करेगी। और इस बात पर तो यही कहा जाएगा ना कि हदीस को बदनाम करने की कोशिश है एक तरीके से। और इस बात पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को भी आज हमने थोड़ा नाराज देखा इस वीडियो में। हर इंसान को गुस्सा आ जाएगा जिस तरीके की ये मुफ्ती साहब बात कर रहे थे। अल्लाह और उसके रसूल का नाम को इस्तेमाल तो करना है लेकिन उनकी बातों पर अमल नहीं करना है इन लोगों को। ऐसी बातें वही करते हैं जिनका अल्लाह ताला से ईमान हटकर किसी और पर जाता है। एक बात और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बहुत ही गहरी कही कि ये काम तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर सकते थे, वो भी बाबा छोड़कर जा सकते थे दुनिया में लोगों को समझाने के लिए, लेकिन उन्हें मालूम था कि वो भी एक दिन दुनिया से जाएंगे, तो इसलिए वो कुरान मजीद को हमारे लिए छोड़ कर गए हैं कि जब तक दुनिया कायम है तो लोग कुरान शरीफ को पढ़ेंगे और गुमराही से बचेंगे, जिन कामों को अल्लाह ताला ने सख्ती से मना फरमाया है। मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बहुत ही उम्दा जवाब दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।